I hope you all are fine and doing well. So I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear students, in this video tutorial, we are going to cover the second topic of unit number 1, that is the sources of the drugs, plants, animal, marine and to the tissue culture. So without wasting any time further, let's start. So at the end of this video tutorial, you will be able to know about the different sources of the drugs that we obtain from the plants, animal, marine as well as from the tissue culture technique. So as we know, a drug may be defined as a substance intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, prevention or the treatment of the disease, or intended to alter a body function or structure of living beings. This is the general definition of the drugs. But in the pharmacognosy, we will focus upon the crude drugs, the drugs which we obtain from the nature in the raw form. And there are different type of classification given in the different books, but we have to focus only upon our syllabus, because in the sources of the drugs we have to study the sources of the crude drugs from plant origin, animal origin drugs, marine as well as the tissue culture. So when you see the syllabus, let me show you the syllabus again. Yes, this is the syllabus. So as you can see, in unit number 1, topic number 2 is the sources of the drug, which include plant, animal, marine and tissue culture. But if you further go in deeper into your syllabus, you will find the unit number 3 is specially dedicated to the plant tissue culture. So unit number 3 is specially dedicated to the plant tissue culture. So we will do some of the part of this unit number 3 in the unit number 1, sources of the drug, that is the tissue culture. Okay, and if you further go inside your syllabus, in the unit number 5, that is the last unit, you have a last topic, that is the marine drugs, that is the novel medicinal agents from the marine sources. So we will also cover some of the topics of this marine drugs in unit number 1, sources of drugs. So I hope this is clear. So we will start with the plant sources first. As you can see over here, this is a general classification of the natural sources of drug, which include the biological sources, marine and the mineral sources. And the biological source include, that is the living sources, plant, animal and the microorganisms, whereas marine sources which we obtain from the oceans. Okay, and of course the mineral sources are there. So if we talk about the biological sources, the most common source is the plant as the sources of the drugs. How this plant, from their various plants we obtain drugs. So plants have been used in different diseases from the time immemorial. तो प्लांट्स को हम आज नहीं, आज से 5000 साल पहले, अगर हम आयुर्वेद सिस्टम की बात करें या उससे भी पहले, जब कोई भी सिस्टम वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं था, तब हम जो डिजीजेस को क्योर करने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम प्लांट्स को यूज करते थे. तो प्लांट्स हैव बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल. ओके, द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड द यूनानी. आयुष सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे. Ayurveda, Siddha and Unani system are based on the use of the plants and other natural substances. तो आयुष सिस्टम में भी प्लांट्स के बारे में बताया गया है, प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो प्लांट्स का यूज डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में और क्योर करने में भी है. सो देयर आर ओवर 2 lakh to 2,50,000 species of the flowering plants growing on the earth. So this is an approximate value, okay, which belong to different genera and approximate 300 families. So plants हमें हर जगह दिख रहे हैं, और नेचर देखिए, जो भी हमें चीज दिख रही है नेचर में, हर एक चीज का कोई किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मतलब है. सपोज अगर आपको एक बंजर जमीन पे एक वीड दिख रही है, कोई खरपतवार दिख रही है कि ये तो बेकार है, ये तो जमीन में खरपतवार है, लेकिन वो आपके लिए, हमारे लिए वो बेकार हो सकती है, लेकिन नेचर के लिए इट हैज अ रोल इन द इकोसिस्टम. अगर कोई वीड भी है तो उसका रोल, एक सिंपल सा रोल है, प्रिवेंशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल इरोजन को बचाने के लिए कम से कम उस जमीन पे अगर एक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी सॉइल की इरोजन से उसको बचा तो रहे हैं. तो वैसे ही हर चीज का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग एंटिटी का, जो हमें नेचर ने दिया है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है. अब वो हमें फाइंड आउट करना है. जैसे जैसे रिसर्च जा रही है, लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. जैसे हाल ही में हमने वेटलैंड्स के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की. एज यू कैन सी,
ये जो दलदली मिट्टी हमें दिख रही है जिसे हमने वेटलैंड बोला है, तो हाल ही में द डिफरेंट रिसर्च इज गोइंग ऑन, इट हैज अ ह्यूज role in the prevention of the pollution from the environment. It provides habitat for different type of species, so it has a great role in the ecosystem. और इंटरनेशनल वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स का भी अपना ही एक सिग्निफिकेंस है नेचर में। नो डाउट इन फार्माकोग्नोसी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट्स को डिफरेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लेकिन एज अ if you talk about the biodiversity, अगर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट हैज अ यूनिक रोल इन द इकोसिस्टम। सो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर लाइक सोलानेसी फैमिली, धतूरा बेलाडोना। तो एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पे, व्हाट इज बोटेनिकल नेम एंड व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक प्लांट का एग्जांपल लें, जैसे धतूरा। धतूरा इज अ वेरी कॉमनली फाउंड प्लांट। सो दिस इज द प्लांट, दिस इज द धतूरा प्लांट। Okay, if we talk about the botanical name, so what is the botanical name? There are different species of Dhatura also. If we talk about the metal species, then it is the Dhatura metal Solanaceae is the family. We know जब भी हम नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम और द बोटेनिकल नेम, फर्स्ट लेटर जो आएगा आपका, दिस वन इज द जीनस, इसको क्या बोलेंगे धतूरा को, दिस इज द जीनस, एंड METEL इज द स्पीशीज नेम। सो फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज शुड बी स्मॉल and it should be in the italics. अगर हम italics में नहीं लिख सकते तो it should be underlined. तो जब भी एग्जामिनेशन में हमें धतूरा मेटल लिखना है तो हमने italics में नहीं लिख सकते, तो हमें उसको धतूरा मेटल लिख के अंडरलाइन करना है, और फैमिली को अंडरलाइन हमें नहीं करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कोई पूछे व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दिस धतूरा हर्ब, तो यू विल राइट यस, इट कंसिस्ट ऑफ dried leaves and the flowering tops of Dhatura metal belonging to the family Solanaceae. It should not contain less than 0.20% of total alkaloids. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोटेनिकल नेम में हमने सीधे प्लांट का साइंटिफिक नेम लिख दिया विद फैमिली, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स में जब भी हम बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे किसी भी प्लांट का, तो इट मस्ट कंटेन द पार्ट यूज। इसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन उस प्लांट के बारे में दे रखी है तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। जैसे इस प्लांट का, जैसे धतूरा मेटल का सपोज हमने बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, तो वी हैव टू मेंशन हियर इट शुड नॉट कंटेन 0.20% ऑफ टोटल एल्कलॉइड। तो ये आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में सिर्फ साइंटिफिक नेम ही नहीं, प्लांट यूज, किसी प्लांट का पार्ट यूज, प्लस अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है उस प्लांट के बारे में, वो कंडीशन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड भी हो सकती है या उसकी ड्राइंग कंडीशन से भी हो सकती है। ठीक है, वो धीरे धीरे हम आगे करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ये चीज याद रखें क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोटेनिकल नेम, राइटिंग अ बोटेनिकल नेम एंड द बायोलॉजिकल सोर्स। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहां पे, सोलानेसी फैमिली के एग्जांपल्स हैं धतूरा, बेलाडोना। देन स्क्रोफुलरेसी फैमिली के एग्जांपल्स हैं, प्लांट है एक डिजिटालिस। उसी तरह से लेबिएटी, तो हमारा तुलसी प्लांट है, दैट इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेबिएटी। देन रूबिएसी कॉफी फैमिली जो है, दैट इज द रूबिएसी इज द कॉफी फैमिली, प्लांट है सिनकोना। तो कम से कम हमें इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज द अबाउट द प्लांट्स, 10 प्लांट्स याद रखने हैं अलोंग विद देयर बोटेनिकल नेम, फैमिली, और कोशिश करें तो केमिकल कॉन्स्टेंट और यूजेस भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो जस्ट लिसन टू मी, आप सुनते जाइए बस। सपोज हम धतूरा की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल सोर्स हमने कर लिया, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ धतूरा मेटल बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी। ओके, इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 0.20% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स। तो ये लिखने के बाद हम इसके केमिकल कॉन्स्टेंट लिखेंगे, दैट इट शुड कंटेन, इट कंटेन 0.5% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स अमंग व्हिच हायोसिन इज one of the important alkaloids. Then you have to write the uses also. It is used as a parasympatholytic drug. Okay, very much used in the motion sickness. In the same way, हमें कम से कम 10 प्लांट्स याद रखने हैं। उसी तरह से सपोज सेकंड प्लांट हम ऑसिमम करते हैं, that is तुलसी। So Ocimum senectum, it's his botanical name, Ocimum senectum, OCIMUM SANCTUM. It belongs to family Labiatae, and the part use entire plant, Ayurvedic, or you can say common name is Tulsi. Tulsi contain chemical constant like essential oils, eugenol,
डेरिवेटिव अर्सोलिक एसिड, डोंट वरी, वी विल कवर इट वन बाय वन। ये हमारे सिलेबस में है कि व्हाट आर एसेंशियल ऑयल्स, व्हाट आर फ्लेवोनॉइड्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स, तो हम सब डिटेल में करेंगे। फिलहाल आपको एक एक एग्जांपल इसमें याद रख के चले। ओके, तो ऑस्टियोसेनेक्टम तुलसी यूज, पार्ट यूज एंटायर प्लांट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ तुलसी? कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीस्पास्मोडिक। जो भी आसान आसान आपको यहां से लग रहा है आपको वो याद कर रहे हैं। तो दो प्लांट हो गए हमारे। उसी तरह से आपको बाकी प्लांट्स याद करने हैं। जैसे इस टेबल में हम एलोवेरा याद कर लेते हैं, बहुत आसान है याद रखना। एलोवेरा, एलोवेरा फैमिली लिलियेसी, आयुर्वेदिक नेम, अगर याद रहेगा ठीक है, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। कुमारी, इसे कुमारी हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा फीमेल डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं, इसलिए आयुर्वेद और संस्कृत नेम इसका कुमारी और घृत कुमारी के नाम से हमें इसको जानते हैं। देन जेल फ्रॉम द लीव्स, एलोवेरा का क्या यूज करते हैं हम? लीव के जो जेल पार्ट है उसको यूज करते हैं। इट कंटेन, एलोवेरा के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं? तो मेजरली कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ये भी हम डिटेल में करेंगे। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, फिलहाल इतना ही याद रखें। देन इट इज यूज्ड एज अ परगेटिव एंटी इंफ्लेमेटरी इमोलिएंट। दिस इज द प्लांट एलोवेरा एंड एवरीवन नोज दिस इज द तुलसी प्लांट, सैक्रेड तुलसी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्लांट यहां से आप याद रखें, दैट इज सेंटेला एशियाटिका, ब्रह्मी। बिकॉज सीएनएस में जब भी हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मी इज यूज एज अ ब्रेन टॉनिक। तो सेंटेला एशियाटिका अम्बेलिफेरी इज द फैमिली। प्लांट का नाम क्या है? ब्रह्मी। पार्ट यूज एंटायर हर्ब। इट कंटेन ट्राइटरपिनोइड सैपोनिन एंड यूज एज अ इम्यूनोमोडुलेटर। इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए वी आर कंज्यूमिंग ब्रह्मी। इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड हमें ऐसा बोला गया है कि हमें इम्यूनोमोडुलेटर चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, हमें तुलसी पीनी चाहिए, ऐसे डिकॉक्शंस पीनी चाहिए आयुर्वेद की, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो और हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो। उसी तरह से आप कॉमनली एग्जांपल याद रख सकते हैं, भांग, दैट इज द कैनबिस सैटिवा। कॉमन हेम्प, इसका कॉमन नेम है। लीव्स पार्ट यूज, कैनाबिनॉइड, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? कैनाबिनॉइड्स, and also used as a immunomodulator, but the general use of cannabis is the narcotic. Okay, is the narcotic. Yes, this is the cannabis, this is the brahmi, that is centella asiatica. नेक्स्ट प्लांट हम याद कर सकते हैं पाइपर लोंगम। ठीक है, जैसे काली मिर्च की दो वैरायटीज है, पाइपर नाइग्रम और पाइपर लोंगम, आपको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पाइपर लोंगम फैमिली पाइपरेसी। पिपली इज द नेम, पार्ट यूज फ्रूट। इट कंटेन एल्कलॉइड्स and it is used as a antioxidant or expectorant also. इस प्लांट की बात हो रही है, that is the पिपली, पाइपर लोंगम बड़ी वाली, and this one is the पाइपर नाइग्रम, ये गोल वाली आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट आप याद रख सकते हैं पेनेक्स जिनसेंग। पेनेक्स जिनसेंग रिवाइटल कैप्सूल्स आप लोगों ने सुने होंगे। यस, दिस इज अ रिवाइटल कैप्सूल, तो इसमें भी पेनेक्स जिनसेंग डाला गया है। एरालिएसी इज द फैमिली। पार्ट यूज फ्रूट्स। It contains saponins and use are adaptogenic. तो इसी तरह से आपको प्लांट्स के नाम याद करने हैं। So this is the plant Panax ginseng. In the same way, asparagus racemosus आप याद कर सकते हैं, जिसे हम शतावरी बोलते हैं। Part use roots. It contains saponin and cytosterol, used as a ulcer healing agent. So this is the shatavari roots. Next आप याद रख सकते हैं गिलोए, that is Tinospora cordifolia, अमृता and chemical part use entire herb. Chemical constituents are alkaloids like berberin, and it is used as a hypoglycemic agent also. Here it is, this is the giloe, very much used in the infection against COVID virus also, Amrita. Next is Acacia catechu, Leguminaceae family. Part use are the leaf, we also use the bark part and the gums. It contain different flavonoid fragments and used as astringent. So this is the plant Acacia खदिर, और बबूल भी हम इसे बोलते हैं। इट इज वाइडली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो फिलहाल आप जितने भी प्लांट्स के नाम याद कर सकते हैं याद करिए, क्योंकि इस चीज को हम बाद में भी याद कर सकते हैं जब हम डिटेल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक आएगा। जैसे लेट मी शो यू द सिलेबस अगेन। तो दिस इज द सिलेबस। तो जब भी हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टॉपिक आएंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हमें स्टडी करने हैं इस बार। तो उस समय पे जैसे ये नंबर 4 में ये जो चैप्टर है डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, तो इसमें हमें हर एक केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कम से कम 10-10 प्लांट्स याद करने हैं। तो उस समय पे आपको जो जो प्लांट्स याद होंगे आप यहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। So we have completed about the first part, that is the plant as sources of the drugs.
Second part is the animals. So apart from the plant, certain animal or the animal products are also used in therapeutics. कौन कौन सी चीजें हम बनाते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स, लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, एनिमल एक्सट्रैक्टिव्स, bile acids, etc. Examples are given here, like thyroid. Thyroid hormone obtain करने के लिए thyroid glands of sheep and pigs are used. In the same way, insulin. Insulin कहां से निकालते हैं हम, कहां से synthesize करते हैं? Islet cells of Langerhans situated in the pancreas of all vertebrates. तो जानवरों के पैनक्रियास से, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के पैनक्रियास से हम आइसोलेट करते हैं इंसुलिन. उसी तरह से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटल्स एंड पिग्स से ऑब्टेन करते हैं. इसके साथ साथ एंजाइम्स की अगर बात करें, काफी सारे एनिमल्स हैं जिससे हम एंजाइम भी आइसोलेट करते हैं. जैसे पैनक्रियाटिन एंजाइम हम पिग के पैनक्रियास से ऑब्टेन करते हैं. जस्ट सी दिस पिक्चर, दिस द पैनक्रियास, दिस पार्ट इज द पैनक्रियास ऑफ पिग. इन द सेम वे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिब्रिनोसिन एंड पेप्सिन आर ऑब्टेन फ्रॉम ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द फ्रेश पिग स्टमक. तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनमें से हम एज अ थेरापेटिक्स मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स ऑब्टेन करते हैं एज अ एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स. अब व्हाई आई एम शोइंग यू शीप. शीप से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वूल फैट, लैनोलिन. तो लैनोलिन इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री आल्सो, दैट इज द वूल फैट. इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट्स, क्रीम बनाने के लिए हम इस शीप में से दिस वूल फैट इज ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट, हनी बी. यस, वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम insect, that is honey bee. तो honey bee से हम Apis mellifera is the species, Apidae is the family. तो उसमें से हम honey bee obtain करते हैं. honey obtain करते हैं किससे? honey bee से. There is very another important example, कस्तूरी मृग. आप लोगों ने सुना होगा कस्तूरी मृग के बारे में. तो एक मस्क डियर है. लेट मी शो यू. मस्क डियर से बेसिकली musk is obtained, and musk is obtained from the preputial follicles of the musk deer, that is the Moschus. इसका नाम क्या है? Moschus moschiferaus. Moschus moschiferaus, Cervidae is the family. और musk obtain करते हैं हम preputial follicles से. तो जिसकी वजह से कई बार एनिमल्स को endangered भी है, एनिमल्स को खतरा भी है, बिकॉज एनिमल को कई बार हमें सेक्रीफाइस मारना पड़ता है बेसिकली. तो कई लोग इलीगल इस काम में भी इन्वॉल्व हैं. बेसिकली आपको इतना याद रखना है मस्क का यूज क्या है, क्या यूज होगा इसका. बेसिकली इट इज अ वेरी हाई ऑर्डर एंड इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी, इन द परफ्यूमरी इंडस्ट्री. इस मस्कोन को हम यूज करते हैं. इट इज वेरी मच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टीरिया आल्सो. तो आप फिलहाल याद रखें, इट इज वेरी मच यूज्ड इन द परफ्यूमरी. अब यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम शोइंग यू द हाथी दांत. तो हाथी दांत भी हम यूज करते हैं इन द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन. आयुर्वेद में हम पढ़ेंगे भस्मास. तो हस्ती दंतमसी, इस तरह की प्रिपरेशन बनती है आयुर्वेद में, जिसमें कि हम जानवरों के कुछ सिंगों का भी प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में जड़ी बूटियां बनाने के लिए, भस्म बनाने के लिए. तो जैसे कि मैंने बताया, इन वजह से इन जानवर को भी खतरा है. क्लियर है? तो इस पे भी सरकार ने बैन लगा रखा है. सिर्फ हम ऑथराइज सोर्स से ही ये चीजें प्रोक्योर कर सकते हैं. ऐसे हम किसी भी जानवर को नहीं मार सकते. इट इज रॉन्ग. सो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है अब किस चीज का, एनिमल एज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का, जिसमें हमने पढ़ा हार्मोन्स, पैनक्रियाज और एंजाइम्स के साथ साथ हम बाकी चीजें भी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेराइन एज सोर्सेज ऑफ ड्रग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट एंजॉय सम ऑफ द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स related to the marine drugs. These are the sea sponge, tunicates, seaweeds, red algae, very very important. Agar is obtained. Blue green algae, brown algae, again a very important marine drug. Sea star, sea snail, these are the marine organism. Yes, इनसे भी हम drugs obtain करते हैं. These are the very much important uses like anti-cancer, antiviral drugs, इम्यूनोसुप्रेसेंट, इम्यूनोमोडुलेटर्स टाइप के ड्रग्स भी आजकल हम मेराइन ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं. मेराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीप शैलो एरिया, समुद्र तल की बहुत ही ज्यादा गहराई में जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, वहां पे मेराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं. एंड वी आर एक्सप्लोरिंग देम. साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. शी शेल्स, बताइए किस चीज का सोर्स है? इससे हम क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. जितने भी आपकी कैल्शियम की टेबलेट्स आती है मार्केट में,
उसमें हमें शी शेल्स यूज होते हैं एज अ कैल्शियम कार्बोनेट सोर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे डोलास्टैटिन, सैक्सीटॉक्सिन। तो ये सब चीजें हम इस एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 5 में ये टॉपिक आएगा डिटेल में, तब हम इसको डिटेल में करेंगे। क्लियर है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द मेराइन एज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। So marine pharmacognosy is a sub-branch of pharmacognosy which is mainly concerned with the naturally occurring substances of medicinal value from marine. Simple, very much clear. As we know, the ocean cover more than 70% of the Earth's surface and contain number of invertebrates and different species. अगर इसको क्लासिफाई करें एक रफ क्लासिफिकेशन में, हम ऐसा बोल सकते हैं, the classification of marine sources can be classified as sponges, स्पॉन्ज से हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, ट्यूनिकेट्स, सीवीड्स एंड द मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्जेस आर ऑफन स्टडीड बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ ऑफ मेटाबोलाइट्स। दिस इज द स्पॉन्ज। नेक्स्ट इज द ट्यूनिकेट्स। सो यूरोकोडेटा में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अगर एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज सी स्क्विड्स। देन सीवीड्स आर देयर। सीवीड्स जनरली रेफर टू लार्ज मेराइन, डोंट वरी, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम मेराइन फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। सो व्हाट आर सीवीड्स? सीवीड्स रेफर टू द लार्ज मेराइन एल्गी दैट ग्रो ऑलमोस्ट एक्सटेंसिवली इन द शैलो वाटर्स एट द एज ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस। समुद्र के किनारे किनारे पे हमें ये देखने को मिलती है। देन ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। यस, ये टेबल आपको इस टॉपिक के लिए भी याद रखना है। जैसे कि सी स्टार, हमने भी सी स्टार देखा। सी स्टार में से हम कौन सा कंपाउंड आइसोलेट करते हैं? सैपोजेनिन। और सैपोजेनिन का यूज कहां पे? कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स बनाने में। उसी तरह से एल्गे से हम डेकाटेट्रानोइक एसिड निकालते हैं, इट इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी। अगेन स्नेल से हम कोनोटॉक्सिन निकालते हैं, इट इज यूज्ड इन नर्वस सिस्टम। अगेन डोलास्टैटिन obtained from tunicate, it is belong to drug class of antifungal. ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स भी हमने मार्केट में सिंथेसाइज कर लिए हैं, जैसे एरा ए, एरा सी। तो ये क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट। ओके, इन द सेम वे एरा सी इज obtained from brine sponge, it is used as anti cancer। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कैंसर में यूज हो रहे हैं। तो यस, समुद्र में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि हम नई फार्मास्यूटिकल्स बना पाए। ओके, सो आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो जब हम इसे डिटेल में करेंगे, यू कैन ऐड दैट कंटेंट इन दिस टॉपिक आल्सो। सो अभी तक हमने क्या कर लिया? प्लांट एज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, एनिमल्स भी कर लिए और मेराइन भी। लेट्स सी द सिलेबस। प्लांट्स कर लिए, एनिमल्स, मेराइन। तो लास्ट इज द टिश्यू कल्चर। तो लेट्स स्टार्ट द टिश्यू कल्चर कंसेप्ट। सो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे हम? सिंपल सी चीज है। सपोज आप करिए, आपने कोई प्लांट ले लिया, सपोज आपने लीफ पार्ट ले लिया किसी भी चीज का, ये लीफ ले लिया, सपोज ये लीफ ले लिया, प्लांट का टिश्यू लिया, सपोज इसको कट कर लिया, तो ये क्या बन गया? प्लांट का टिश्यू, जिसके हमने नाम दिया एक्स प्लांट। डोंट वरी, इसे भी हम डिटेल में करेंगे जब ये पूरा डिटेल में आएगा। इसको हमने फिलहाल इतना याद रखें, क्या बन गया? ये एक्स प्लांट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट लिया, उसका टिश्यू को ऑब्टेन किया, ऑब्टेन करने के अलग अलग मेथड्स हैं, देन इसको कल्चर कर दिए कल्चर मीडिया में। जो कल्चर मीडिया, अगार इसमें हमने यूज किया। एक सपोज करिए पेट्री डिश ली, उसमें अगार डाला, उसमें कल्चर मीडिया ऐड किया और उसमें हमने अपना प्लांट को ग्रो करने के लिए रख दिया। कुछ समय बाद क्या होगा? इस प्लांट के प्लांटलेट्स बन जाएंगी, टाइनी प्लांटलेट्स। जैसे ये बनेगी, इसको हम लेंगे और सॉइल के अंदर लगा देंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। सो हियर आपने, दिस इज द प्लांट, सपोज आपने एक लीफ लिया, उसके पत्ते उसमें आइसोलेट कर लिया, दिस इज नोन एज एक्स प्लांट। टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट में से आपने टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड किया, इसे ट्रांसफर किया आपने। सपोज ये पेट्री डिश है जिसमें आपने अगार डाला है। अगार बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग मीडिया। सपोज आपने प्लांट लिया, उसको ग्रो करना है, कैसे करेंगे? आप सबसे पहले प्लांट लेंगे, उसको मिट्टी में लगाएंगे। तो लैब में बनाने के लिए हम डायरेक्ट मिट्टी की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक सॉलिडिफाइंग मीडिया लेंगे, उसकी जगह हमने सपोज अगार यूज कर लिया। लेकिन मिट्टी और अगार में बहुत फर्क है, ये मैं सबसे समझाने के लिए बता रहा हूं। मिट्टी के अंदर अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अपना न्यूट्रिशन ऑलरेडी होता है, लेकिन अगार में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगार में हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप यू रिमेंबर, मैक्रो मतलब एनपीके,
नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अपने प्लांट लिया, उसको रिमूव किया एक पार्ट को, उसको हमने क्या बोला, एक्स प्लांट, ईएक्स प्लांट, उसको ट्रांसफर किया हमने किस पे, अगार प्लेट में, और अगार प्लेट में हमने ऐड किए न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसे ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए, हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन है। इन द सेम वे अदर हार्मोन्स भी है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को हार्मोन चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, शायद आप लोगों को याद हो। तो इसी के साथ साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमने इसमें हार्मोन्स भी ऐड किए, और प्लांट्स देखिए क्या बन गया, स्मॉल टाइनी प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गए। और जैसे ये प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होंगे, वी विल ट्रांसप्लांटेड इनटू द कंपोस्ट, हम इसे सॉइल में ट्रांसप्लांट कर देंगे, कंपोस्ट में बना देंगे, देन सॉइल में ट्रांसप्लांट करके पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। अब ये क्यों हुआ, इस पार्ट ऑफ द प्लांट के पास एक खास चीज है जिसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। Just see the definition. It is the ability of the single cell to divide and produce all of the differentiated cell in an organism. So ability of the single cell to divide and produce all of the differentiated cell, or we can say that ability of the single cell to divide and produce the organism is known as the totipotency. And the cell is known as the totipotent cell. तो plant cells are the totipotent cell. उनके पास ये क्षमता है कि वो डिवाइड करके पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट को बना सके, और इसी टेक्निक को हम यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर पे। सिंपल। तो एक ओवरव्यू देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का, क्योंकि इसे हम डिटेल में भी करेंगे। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज द हेबर लैंडेंट। इन 1902 ही अटेम्प्टेड फर्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर। कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे एक्सप्लांट, प्लांट ऑर्गन और पीस ऑफ द टिश्यू यूज टू इनिशिएट द कल्चर। कल्चर बनाने के लिए जो पार्ट यूज करेंगे जिसको बोलेंगे एक्सप्लांट। जैसे कैलस वर्ड यूज हो रहा है बार बार, तो कैलस क्या है, टिश्यू राइजिंग फ्रॉम द डिसऑर्गेनाइज्ड proliferation ऑफ द cells either in the culture or in the nature. Undifferentiated mass of cell, आप सिंपल बोल लीजिए undifferentiated mass of the cell। अब आपको लैब में प्लांट टिश्यू कल्चर करना है, क्या क्या चाहिए, यस आपको सबसे पहले एक्सप्लांट चाहिए, ग्लासवेयर चाहिए, एक मीडिया चाहिए जिसमें आपने उस प्लांट को ग्रो करवाना है। पूरा का पूरा काम कैसा होगा, स्ट्राइल कंडीशन, स्टरलाइजेशन में एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए हमें। क्या कल्चर रूम में पूरा का पूरा लेमिनार एयर फ्लो, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी में ये चीजें पढ़ी हैं। इंक्यूबेशन रूम चाहिए प्रॉपर, आप उस प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होंगी, तो आपको सारे इंक्यूबेटर में मेंटेन करनी है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। फिलहाल आप इतना ही याद रखें, जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम इसे डिटेल में करेंगे, तब आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। अब एप्लीकेशन देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से एप्लीकेशन देखिए जो आपको फिलहाल समझ आ रही है। डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लांट में किसी भी तरह के चेंजेस ला सकते हैं, उसकी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, फास्ट ग्रो करवा सकते हैं। सीड डोरमेंसी उसकी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अगर प्लांट डोरमेंट स्टेज में चला गया है तो उसको हम ब्रेक करके उस प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। अर्ली फ्लावरिंग करवा सकते हैं। देन वी कैन प्रोड्यूस फास्ट मल्टीप्लिकेशन, हैप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड, हम अलग अलग वेराइटीज ये पढ़ेंगे डिटेल में, हैप्लॉइड क्या है, पॉलीप्लॉइड्स क्या है, वो सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को आइडिया हो चुका है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हमने टिश्यू कल्चर भी कंप्लीट किया। इन द लास्ट आई एक्नॉलेज ऑल द सोर्सेज आई हैव यूज्ड टू प्रिपेयर दिस वीडियो। इस वीडियो का पर्पस किसी भी तरह का कमर्शियलाइजेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन।